Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So today we are taking about the question number 8 for GS4 Ethics from 2022. So the first question was asking about what are the options available in this case study. So first is that you will be withdrawing the report after the displeasure which is shown by the senior authorities. Second option is that you can continue with the due process to investigate the issue further. And third is that you will be trying to resolve this at the personal level. So these are the three options available. Then which one to adopt and the reason for that. So I would be going forward with the option 2. That should be adopted to continue with the process of investigation because it's a matter of national security and it cannot be ignored at any cost. And it would also accelerate the process of illegal infiltration if that is ignored. So this matter, it will also send the wrong message to the security personnel if it is successfully suppressed. And the matter of the forged documents, it can lead to inclusion error in the different schemes also because of the forged documents issue. Then the matter of promotion, that is not a priority when it's about the safety of the people. Then we have to evaluate each and every option provided by us. So here, withdrawing the report, it is not desirable as it will raise questions on the Ramesh integrity, honesty, and morality. Further situation can turn volatile, leading to disturbances because of the illegal immigrants. Then continuing with the due process of forward with the investigation that is required with the support of higher authorities, and in the long term they will understand the gravity of the situation, but it would like take some time. And then resolving this matter at the personal level, initially it can help, but it would require the involvement of senior officers also, so this wouldn't be sustainable option. Then the next option was about the ethical dilemmas in this case study. So first is the national security versus the pressure from the higher authorities, and then self-interest versus national interest, power of honesty and evidence versus the non-neutrality thing. And what policy measures would you suggest? So here, plugging the loophole through drone technology, CCTVs on the border areas, especially the porous regions, to avoid human interference. Then to check the misuse of the forged documents, you would suggest inserting unique security chips to easily distinguish between the fake docs. Third would be introducing strict penalties for the security personnel at fault. And I've given few examples that it can be in the form of they can be like held ineligible for the government services on release from the prison after whatever like punishment they are given. Then strict imprisonment should be given to them and withdrawal of the social security benefits. So that's all. हाँ, इसमें विड्रॉ करने का ऑप्शन था एक कंटिन्यू ड्रू प्रोसेस और रिवाइजिंग के नीचे करें। तो आप कौन सा इसमें आप करें? ऑप्शन 2, कंटिन्यू द ड्यू प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू। हाँ, क्राइम नोट मैंने भी यही किया। सिक्योरिटी, हाँ नेशनल सिक्योरिटी, हाँ ठीक है। मैंने क्या कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस टू टैकल इलीगल। हाँ, मेन चीज यही है कि जितने सारे एंगल्स केस स्टडी लेके आइए वो सारे एड्रेस होने चाहिए, उन सबका मेंशन होना चाहिए जब हम रीजन दे रहे कि व्हाई एनी पर्टिकुलर ऑप्शन नीड्स टू बी अडॉप्टेड। इवैल्यूएट में नॉट डिजायरेबल, ठीक है, तो कंटिन्यू विद। लेकिन इसमें एक इशू है ना कि आपका जो सीनियर था वो बोला कि नहीं छापने के, मतलब नहीं रिपोर्ट को डालने के, तो आपने क्या बोला उसके अलावा? मैंने पहले वाला में लिखा है ना कि विड्रॉ रिपोर्ट अगर आप करोगे तो ये डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो रमेश की इंटीग्रिटी ऑनेस्टी है उसके ऊपर। हाँ, वो समझ में आ गया, मैं बता रहा हूँ कि वो दूसरा वाला जो आप जो कर रहे उसमें ये लिखा ना, कंटिन्यू विद द ड्यू इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड विद द सपोर्ट ऑफ हायर अथॉरिटीज एंड इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, तो आप मेंशन कर रहे थे कौन सा किसका है। हाँ मतलब क्योंकि ठीक है, मैंने उसको वो नहीं किया अलग से पैराग्राफ वाइज, क्योंकि मैंने इन शॉर्ट सपोर्ट ही नहीं मिल रहा ना बेसिकली इसमें। इससे पहले ही बोला ना कि हायर अथॉरिटी का सपोर्ट ही नहीं था, नहीं मिल रहा लोकल, लेकिन आप डायरेक्टर है। मैंने लिखा तो है, एंड में लाइन पढ़ो ना, इन द लॉन्ग टर्म दे विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो ये सीनियर ऑफिशियल्स के लिए तो है कि आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते ना लंबे टाइम तक, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट। लेकिन आप कैसे समझाएंगे या कैसे आप रिजॉल्व करेंगे एट पर्सनल मैटर, वो आपने मेंशन किया बेसिकली 2 लाइन। मतलब वो तो बता दिया है कि जो सीनियर अथॉरिटी है, जो सीनियर ऑफिसर, वो बोल दिया कि नहीं जरूरत नहीं है, वापस कर लो रिपोर्ट।
सिंपल सा बात है, हाँ। एडिशनल सेक्रेटरी। हम्म। आप डायरेक्टर ऑफ सीआईडी हैं, हम्म। तो आप कैसे रिजॉल्व किए वो पॉइंट इसमें, कि कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको? वो तो मान ही नहीं रहा बात ना सामने वाला। तो अगर उसका अगर मेंशन क्या रहता तो ठीक है। नीचे पे ठीक है, नीचे वाला मतलब एथिकल उसमें डिलेमा तो हम ठीक है। क्या करते हैं, वर्बली तो हम चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें, और क्या कर सकते हैं, सीनियर अथॉरिटीज को भी साथ हाँ ले, मतलब और मेरा क्या। आप देखिएगा, फिर आप सोचिए कि कैसा ठीक है। एड्रेस किया। ओके। फिर हाँ। ठीक है, पावर ऑनेस्टी एविडेंस ना, ठीक है। पॉलिसी मेजर। पॉलिसी मेजर, पॉलिसी मेजर में वही वाला सेम चीज हुआ कि पहला जो आपने बताया कि स्ट्रिक्ट पेनल्टी तो ठीक है, वो तो हाँ। बिहेवियर एस्पेक्ट पर चेंज करना है। आपने फिर बता दिया टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट में, और फिर मिसयूज ऑफ और फॉल्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स। फिर एक कोऑपरेशन लेके आ सकते थे मेरे अनुसार, जो बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है दोनों कंट्री के बीच में, एक कोऑपरेशन, ताकि प्रोटोकॉल के हिसाब से भेजा जाए वापस। तो कॉपरेशन के लिए ऐसे आप किस तरीके की पॉलिसी मेजर सजेस्ट करोगे, वो लेके आना चाहिए था ना। ऐसे कॉपरेशन होता को है, लाने के लेकिन लिए फिर आप इसमें क्या कोई कंट्री नहीं लिखा हुआ था इसमें, तो मैंने कंट्री एक्सटर्न ऐड नहीं किया। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स का होता है कि एक रोज मीटिंग होता है कमांडेंट लेवल पर, वो डिसाइड करते हैं कि कैसे वापस एसओपी। तो इसमें लिखा हुआ था कंट्री, तो मैंने सिर्फ सिंपल लिख दिया कि कोऑपरेशन विद द बॉर्डर पुलिस फोर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्री टू फॉलो द स्ट्रिक्ट एसओपी गाइडलाइंस रिगार्डिंग टेकिंग बैक ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड पीपल। ठीक है, नीचे पर। देखो, मैंने जो पॉलिसी मेजर्स लिखे तो मैंने इस तरीके से सोचा कि और क्या नया हो सकता है, जो ऑलरेडी हो रहा है उसको तो आप रिपीट नहीं कर सकते ना। आपकी तरफ से क्या सजेशंस आएंगे, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से लिखा। ठीक, मैंने बता दिया बस। ठीक। एथिकल डिलेमा वो पहले का लिखा हुआ था, इसलिए वही सेम प्रोसेस फॉलो है हम्म। कि एथिकल डिलेमा, उसके बाद फिर केस ऑफ फॉलोइंग हायरार्किकल सिस्टम कंसाइंस, केस ऑफ फॉर्जरी, possessing the threat of security versus human rights of migrant, illegal migrant। तो मैंने ह्यूमन राइट्स ऑफ illegal migrant, प्रेफरेंस ऑफ सिटीजन विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, दोनों का राइट्स। ऑप्शन अवेलेबल टू रमेश, ऑप्शन मैंने बता दिया कि इट इज मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसको सेंड करना चाहिए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का, अलॉन्ग विद द कॉपी टू सीएमओ, चीफ मिनिस्टर को। रिकमेंडेशन शुड बी मेड with the use of border force of both the country to coordinate and send back illegal immigrant based on SOP। तो प्रोज मैंने बता दिया कि प्रोएक्टिवनेस होगा, कौन से बता दिया कि नॉट फॉलोइंग द हायरार्किकल सिस्टम, अपहोल्डिंग नेशनल इंटरेस्ट और करियर प्रोस्पेक्ट मे बी इन जेओपार्डी, कौन में। टू में कि टेकिंग नो एक्शन, विड्रॉइंग द रिपोर्ट, इसमें होगा कि हायरार्किकल सिस्टम फॉलो होगा, करियर प्रोस्पेक्ट हार्म नहीं होगा, लेकिन कौन से मौके नॉट अपहोल्डिंग पब्लिक national interest, creating a precedent which will affect the democratic election, harming the nation interest in a long run। तो मैंने बी में समझाया कि रमेश को फॉलो करना चाहिए पहला ऑप्शन, क्योंकि द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ चेंज इन डेमोग्राफिक्स, उसे टेंशन होता है सोसाइटी के बीच में। Thereby, being a director of Home Department, it is a duty of Ramesh to keep the integrity and fraternity of the state over his personal interest. Following his conscience, रमेश शुड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिसी मेजर मैंने बता दिया कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोथ द कंट्री, वर्क वीजा देना चाहिए माइग्रेंट को टू अलाउ सेफ पैसेज एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, एनआरसी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए बिटवीन रिफ्यूजी एंड इलीगल इमिग्रेशन अंडर लॉ। उसके बाद फिर एफडीआई भी कर सकते हैं नेबरिंग कंट्री में टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, और स्ट्रिक्ट एक्शन तो है टू आइडेंटिफाई फॉर्जरी विद इंटरेस्ट लास्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग से लेते हैं। एथिकल डिलेमास में आपने एक्सप्लेन फॉलोइंग द हायरार्किकल सिस्टम वर्सेस ओन कॉन्शियंस, ठीक है, केस ऑफ फॉर्जरी आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल लिखा, ऑप्शन वन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो क्या करना चाहिए, क्या लिखा है आपने यहाँ होम ऑप्शन। मिनिस्ट्री को देना चाहिए, यहाँ तो स्टेट मिनिस्ट्री का बात कर रहा था ना यहाँ पर, वो एडिशनल सेक्रेटरी स्टेट का था, तो मैंने बोला कि मैं भेजूंगा होम को, वहां से मैं रिकमेंडेशन भेजूंगा कि बॉर्डर फोर्स जो है ना वो फिर टैकल करेंगे इलीगल इमिग्रेंट को। हाँ, तो मतलब आप बाईपास कर रहा हूँ बेसिकली स्टेट को। डिटेल आगे भेजोगे, आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भेजोगे। हाँ मतलब होम को,
क्योंकि स्टेट में तो पहुंच ही नहीं रहा है। और जो भी मैं भेजूंगा होम को वो मैं कॉपी दे दूंगा सीएमओ को, ताकि पता भी चले सीएम को क्या हो। ठीक है, फिर आपने यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दिया, प्रोज एंड हाँ कॉन्स, मतलब हाँ, वो showcasing अलग proactive में the कंफ्यूजन लगता illegal, है। upholding the national interest। no। यहाँ पे प्रोज में जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है, शोकेसिंग प्रोएक्टिवनेस अगेंस्ट द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, की जगह और कोई इफेक्टिव पॉइंट आ सकता था ना। प्रोएक्टिवनेस तो ठीक है, इसको और क्या बेनिफिट होगा अगर आप आगे इस डिटेल को भेजते हो तो। कॉन्स में नॉट फॉलोइंग द हायरार्किकल सिस्टम इन हाँ ब्यूरोक्रेसी। मतलब बोलता कि इसमें कि होम मिनिस्ट्री से प्रेशर आ सकता था स्टेट के ऊपर, ताकि वो एक्टिव काम करे विद नहीं, रिगार्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, मतलब वही थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया आंसर को। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोस एंड कॉन्स ऑप्शन 2 के भी नो एक्शन के लिखे हैं नॉन का। फॉर सिस्टम, मतलब वही फिर जैसे यहाँ पे जो कॉन्स था, यहाँ पे जो नेगेटिव था, आपने हुआ यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। तो कोशिश यही करनी है कि चीजें रिपीट ना हो, या वर्ड्स रिपीट ना करो, जो आप बोलना चाह रहे हो डिफरेंट वर्ड्स यूज करके उसी चीज को बोलो, तो से रेपिटेशन मुझे ना हो। लगता है ऐसे प्रोज और कॉन्स ना, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल लिख दूं, लेकिन फिर हाँ, हाईलाइट नहीं हो पाता है। नहीं हाईलाइट इसलिए हो मैं जाएगी, इसको आप अलग तोड़ दिया उसको इसको, शॉर्ट में लिखो ना, कि आप अंडरलाइन कर देख दोगे के तो आगे बढ़ जाए हाईलाइट इससे। होगा। क्योंकि मैं कभी ऐसे प्रोज एंड कॉन्स मैं ऐसे डिवाइड नहीं करके लिखती, बट वो चीजें तो दिखी हाँ जाती है मतलब ना, लिखा है अंडरलाइन करोगे बाकी तो। सब तो पता, लेकिन प्रोजों का मुझे लगता है कि अलग से हाईलाइट करने में ना आसानी हो जाता है देखने में, हाँ वो ठीक है, कि आप इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट पॉइंट कर, वाले अलग नहीं डाल सकते। ठीक है, बट तो मैं बस ये कह रही हूँ रेपिटेटिव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपने सेम हिरार्की की बात करी, यहाँ पे फिर से आपने वो प्रोज में वही चीज आ गई, वो तो है ही, थोड़ा डिफरेंट हाँ वर्ड्स। लेकिन वो बात करें ना कि ऑप्शन कितना अवेलेबल था, तो ये ऑप्शन तो चूज ऐसे भी करना है नहीं, लेकिन नेगेटिव ऑप्शन। हाँ तो वो तो कुछ भी हो, मैं बस रेपिटेटिवनेस की बात कर रही हूँ, वो चीज हाँ, नहीं करना। ऑप्शन वन आपने चूज किया। यहाँ पे आपने लिखा इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते थे, बिकॉज ऑफ चेंज इन द डेमोग्राफिक्स। सो डेमोग्राफिक्स तो ठीक है, पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से आ गया, उसकी वजह से सिक्योरिटी वाली चीज आपने यहाँ मिस कर दी, वो नहीं लिखा नीचे आपने। में लिखे थे इंटीग्रिटी वाला। डायरेक्टर इज द ड्यूटी रमेश कीप द इंटीग्रिटी इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉलोइंग हिज कॉन्शियंस रमेश में टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। पॉलिसी मेजर्स फिर आपने सजेस्ट, पॉलिसी मेजर्स में मेरे को लग रहा है आपने ज्यादा लिख दिया कुछ, मतलब जो इश्यूज थे केस स्टडी में, उससे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा बियॉन्ड चले गए आप। ऊपर का देखना, कहाँ पे? ऊपर में क्वेश्चन ये लिखा यहाँ हुआ है कि सजेस्ट, हाँ, कॉम्बैट द मीनेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल इलीगल माइग्रेंट्स। हाँ माइग्रेंट, मतलब सिर्फ इसी का बात कर रहे हैं, हाँ सिर्फ उसको उसी बस की बात कॉम्बैट करनी करना चाहिए। है। तो और कोई जॉइंट फॉर्जरी से बात कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ इसी की बात हो। हम्म, यूजिंग दी वर्क वीजा अलाइंस नॉन डिस्क्रिमिनेशन सिस्टमैटिक एनआरसी। हाँ ये थोड़ा सा मतलब एनआरसी से तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड। एनआरसी कंट्रोवर्शन नहीं है, एनआरसी कंट्रोवर्शन नहीं है, वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है, सिंपल है। सिंपल है बट मतलब फिर, अगर उसमें अगर सीए ऐड करते तब आप बोलते कि थोड़ा सा, समझ हाँ रहे। एनआरसी एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो नेशनल से रजिस्टर सिटीजन होना ही चाहिए कोई भी कंट्री में। यहाँ पे आपने लिखा फोर्थ पॉइंट में कि क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए लॉ के अंदर, बट मेन पॉइंट जो है वो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे इंश्योर करोगे, तो काम तो वो तभी आएगा ना, लॉ में तो आप ले आओगे, लॉ में उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है मेन टास्क तो। देन एफडीआई एफपीआई मेजर्स नेबरिंग कंट्रीज में ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसका मेरे हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स इंडल्जिंग इन द आइडेंटिटी, यहाँ पे मतलब एक्शन अगेंस्ट ठीक है, आपको ट्रेनिंग और पॉलिसी मेजर्स हमें करने थे ना सजेस्ट, ठीक है, ट्रेनिंग का नहीं था, ठीक है, पॉलिसी मेजर्स ठीक है, थोड़ा और हो सकता था, ये सही हो सकता था पॉलिसी मेजर्स वाली चीज। कि आंचल क्या बोल रही है, आंचल ने मैसेज डाला है, केस हाउ इट कैन बी एथिकल डिलेमा प्लीज मेक क्लियर। ये मैंने ऊपर शायद करिएगा, था, मेरे एक, मेरे बात करो, मेरे में है वो बोला नीचे, हाँ, मेरे में तुम।
case of forgery with the हाँ identity documents of the illegal immigrant may pose threat to security. हाँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी ethical ऑफ द कंट्री, dilemma का है, हाँ ठीक बोल रही हैं आंचल, इसमें क्या ethical dilemma है? अनएथिकल है बेसिक, हाँ ठीक है सही। हाँ बस ये अनएथिकल चीज है। नीचे लग रहा था, दो रहता है इसमें सिंपल, हम्म तीन रखता था, तीन रख सकते। आंचल वाले पे आते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल, withdraw the confidential report, conveniencing the additional home secretary, hire authorities to pressurize report withdrawal, and third है resolving this issue at the personal as well as professional level. So option 3 लिखा है adopt at the personal and the issue because the following reason. तो आंचल ने दूसरा ऑप्शन चूज किया बेसिकली, मतलब जो हमने किया उसके अलावा डिफरेंट चूज किया। मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 ही होना चाहिए था, वो ही ज्यादा एप्ट है इन तीनों। ऑप्शन 2 सो मतलब ऐसे ही ऑप्शन चूज करना नहीं, चाहिए जो नहीं ब्रॉड हो ऊपर कर और देगा। जो एथिकल हो। इसमें बात कर रहे हैं कि कन्विंसिंग द एडिशनल होम सिक्योरिटी, अगर ये भी रहता ना तो भी सही रहता, कैसे कन्विंस करते वो बताते ऑप्शन 2 में, वो मुझे दिखा नहीं। नीचे करे, नीचे में लिखा है उन्होंने, नहीं लिखा इन्होंने। कैसे आप कन्विंस करेंगे? आपको रिपोर्ट बताएंगे कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट है, इतना लोग आए हुए हैं, या फिर स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, या फिर डेटा पॉइंट बताते हैं, ऐसे कन्विंस करेंगे उसको। अगर कुछ वो भी लेके आते तब भी चलता, लेकिन आपने नहीं मेंशन किया उसमें। एथिकल डिलेमास, सेल्फ सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, इसमें सेल्फ सर्विस में क्या आएगा? जरूरत नहीं था इतना। हाँ लीगल एक्शन, फोर्थ वाला सही है, नहीं आज ये थोड़े थर्ड वाला भी नैरो सही है, जो एथिकल डिलेमास वाले थोड़े नैरो हो गए, मतलब लेकिन सेटिस्फैक्शन डिसएडवांटेज नहीं है। सिर्फ कीवर्ड्स यूज करती है आंचल। कीवर्ड जो क्वेश्चन में दिया उसी को यूज करके लिखते हैं। तो जो इशू है एक्चुअली वो नहीं निकल के आया आज। राइट्स ऑफ सिटीजन वर्सेस राइट्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है, हाँ वो इफेक्टिव होता है ना, और टू द पॉइंट था वो। पॉलिसी मेजर मल्टी स्टेक अप्रोच एंड फाइंडिंग फंडिंग। डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। अगेंस्ट चाइना, चाइना में illegal में कहाँ माइग्रेंट कहाँ से आ रहे हैं इंडिया में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये गलत है। हम्म फर्स्ट वाला भी आप मेंशन नहीं किए, कैसे आप करेंगे, क्या पॉलिसी मेजर होना चाहिए? हाँ फेंसिंग अब सही है, फोर्थ वाला सबसे अच्छा है। fencing up all the border फोर्थ वाला पहला होता, daily। सेकंड में सेकंड वाला होता डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड में वैसे ही आप लेके आते सीसीटीवी कैमरा या फिर ट्रेनिंग ऑफ बीएसएफ और बाकी सब। फोर्थ में मेरा वाला पॉइंट लेके आते हैं एनआरसी वाला या फिर फौजरी के खिलाफ पनिशमेंट देने वाला, तो ठीक। ठीक है चलो, that's all for this session, and stay connected with us for more informative sessions with us. Thank you so much.